And question one, two, verification is required and part number A. And this is given that 18 number B. And the part number B, this is the question minus 21 into minus 4 plus minus 6 square bracket closed equal to minus 21 into minus 4 and then plus, this is just into the square bracket, and then plus another square bracket minus 21 into minus 6 and another square bracket is closed. So dear, this is the question. And what to do? How can we solve this question? First of all, we will write here, this is the left hand side. This is left hand side. And this one is right hand side after the equal sign. इक्वल साइन के बाद ये पूरा पार्ट राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है. ओके, सो वी विल टेक एज लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट. And this is dear left hand side, and left hand side you will write same to same, minus 21 into square bracket minus 4 and then plus minus 6. So dear, you will get minus 21 is same to same into, now minus 4 you will write as plus and minus, again minus, and when you get the same sign then you will add both number. यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस नहीं होगा, बट these two numbers you will add. 4 और 10 कितना हो, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, एंड माइनस साइन यू विल पुट सेम टू सेम, साइन माइनस ही रहेगा बट रिजल्ट इज minus 10. नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस माइनस टू दिस माइनस then you will get now plus 10 and 221 10 ja means simply you will put here 0, then you will get 220. So this is the left hand side. Now you will take the right hand side. अब हम क्या करेंगे, right hand side को select करेंगे. So right hand side means this part. So you write again this part. This is again square bracket minus 21 into minus 4 plus second square bracket minus 21 into minus 6. So dear, you will observe that minus into minus you will get plus, and 21 4 जा, नहीं जानते हैं टेबल तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 जा 4 and 4 2 जा 8, and again this bracket is closed, then plus, move to second square bracket, minus and minus is plus, and 21 6 जा, नहीं जानते हैं तो 6 1 जा 6 and 6 2 जा 12. Now both number is positive, so you will get the result as 84 plus 126. You will get finally 6 and 4 10, 2 and 8 again 10 and carry 1, that is 11, and 11 carry 1 and this one, so you will get 2. Again you will get 210, and in left hand side what is the value, 210. So you will write for the result after the observation, since left hand side equal to right hand side, hence verified. ये आपका आंसर हो गया. अगर ये लेफ्ट और राइट का वैल्यू अलग अलग आता, डिफरेंट वैल्यू आता,
तो हम क्या करते हैं, दिस इज नॉट सेम, तो ये वेरीफाई नहीं होता। अगर ये वैल्यू कुछ और निकलता है, यहाँ पे कुछ और, लेफ्ट हैंड में कुछ और, राइट हैंड में कुछ और, तो उस केस में हम लिखते दिस इज नॉट वेरीफाइड, तो हमारा आंसर ये होता। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे, पार्ट नंबर ए जो है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज जस्ट एज for any integer a, what is -1 into a equal to, कोई भी इंटीजर है तो -1 को अगर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये बताना है, ठीक है। तो -1 को अगर हम देखो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा, 1 को किसी नंबर से भी या किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही रिजल्ट मिल जाता है। जैसे ए को 1 से करेंगे तो ए आएगा, 10 को 1 से करेंगे तो 10 आएगा, 21 को 1 से करेंगे तो 21 ही आएगा, 125 को 1 से करेंगे तो 125 भी आएगा, सेम रिजल्ट आता है अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट हियर इज द नेगेटिव साइन, so we will get the negative answer. Okay, so -1 into a, that is -a, तो इसका आंसर तो ओरल हो गया। अब सेकंड कह रहा है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है -1 को अगर हम पार्ट नंबर सेकंड बताते हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट तो ओरल ही हो गया, प्रोडक्ट विथ -1, so here is given that a number 22, so dear what you will get, means क्या करना है, 22 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, 22 into -1, what you will get, 21 to 22 1 ja 22, and here is the minus sign, so you will put the result, this is the answer, यही आंसर हो जाएगा। अब आपका बी पार्ट है 37, अब 37 को भी मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, देयरफॉर प्रोडक्ट, और यहां भी आप क्या लिखना है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 37 किससे करना है, -1 से, सो यू विल गेट 37 1 जा 37, एंड हियर इज द माइनस, सो यू विल गेट द माइनस। ओके, नाउ पार्ट नंबर सी है, अब आपका सी आपका क्या है, 0, तो प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है, देयरफॉर प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस डियर 0 इंटू -1, सबको -1 से ही करना है, तो 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल रिजल्ट बेटा मेरा 0 ही होता है, तो यहाँ पे 0 ही रिजल्ट आ गया, 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यहाँ माइनस लगा भी दें लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, राइट वेरियस प्रोडक्ट showing some pattern to show -1 into -1 equal to 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पैटर्न लेना है, -1 into 5 से स्टार्ट करना है, सबसे पहला पार्ट आपका क्या होगा, -1 into 5, उसके बाद फिर आप और भी क्वेश्चन लेंगे, तो वो क्वेश्चन कैसे लेना है आपको कि -1 into -1 equal to 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, ये हमारा लास्ट ऑप्शन होगा, एक पैटर्न लिखना है, तो पैटर्न का मतलब ओके, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into सिंस -1 into 5, बताओगे रिजल्ट क्या आएगा, 5 बन जा 5, -5 आएगा, और आपको इंड कहां करना है, -1 into -1 इक्वल टू, देखो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, और 1 into 1 तो 1 ही रहेगा, तो +1 होगा, ठीक है। और ये करना है आपको इंटू, तो इसी पैटर्न पे आपको सीरियल से करते चले जाना है, कैसे करते चले जाना है आप अभी भी नहीं समझे होगे, अब मैं बता रहा हूं, -1 into 4 में से 1 माइनस कर लो, तो सॉरी 5 में से 1 माइनस करो तो क्या आएगा, 4, वेरी गुड, 4 1 जा 4, रिजल्ट हो गया -4। ओके, नाउ अब आप लिखेंगे -1, इसमें से 1 और माइनस कर दो तो क्या आएगा, 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करो तो -3 हो गया।
अब आप इसमें से एक और कम कर दो 3 में से, तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा, तो -1 इंटू 2, रिजल्ट आएगा -2। फिर आप यहां पे क्या करोगे, 1 इंटू एक और कम कर दो तो क्या आ जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा, तो कितना होगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहे, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 1, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 ही तो आएगा ना, तो 1 इंटू 1 1 -1। अब इस 1 में से भी एक माइनस कर दो, 1 -1 करोगे तो क्या आएगा 0, तो आप लिखोगे -1 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। और फिर आप इस 0 में से भी 1 माइनस करो तो क्या आएगा -1, और -1 आपका ये पहले से ही लिखा है, देखो -1 इंटू, तो सीरियल से हो गया 5 4 3 2 1 0 -1। अभी इसके नीचे और भी जाएगा -2 -3 -4, लेकिन वो करना नहीं है, वो कह रहा है -1 इंटू 1 तक ही करना है, उसके आगे नहीं जाना है। तो ये आपका हो जाएगा लास्ट स्टेप। तो ये पैटर्न हो गया। पैटर्न में क्या हो गया, रिजल्ट आपका देखिए क्या आ रहा है 1 0 -1 -2 -3 -4 -5। मीन्स अगर हम -1 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, यही करना था, यही पैटर्न है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होगा, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5, यस, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ प्रॉपर्टी लिखा है, अगर प्रॉपर्टी नहीं लिखा होता तो आप जैसे मल्टीप्लाई क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 में करते थे वैसा ही आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिया है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। तो सुटेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वो आपको सीखना है। तो इसके लिए भी हम आपको पार्ट नंबर पहले बी बताएंगे, ए पार्ट नंबर आप खुद करेंगे। तो पार्ट नंबर बी, यूजिंग प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट आपको चाहिए, ठीक है। तो पार्ट नंबर बी हमने लिखा, इट इज गिवन दैट 8 इंटू 53 एंड इंटू -125, ये क्वेश्चन है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। अब आप देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या यूज हो रही है, यहाँ पे हम पार्ट नंबर बी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अरेंजमेंट, नंबर को आगे पीछे हम अरेंज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जब प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर लेंगे तो हमें आसानी से उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो हम इसे कैसे करते हैं, हम इसे लिखेंगे 8 इंटू -125 इंटू 53, ये नंबर हमने अरेंज करके यहां लिखा, तो ये कौन सा हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब आप देखो इससे करने से फायदा क्या हुआ, 8 5 जा, देखो ये 100 है ना, 125, तो 100 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आएगा ना, वेरी गुड। और 25 को 8 से और करो तो 200 और आएगा, तो 200 का मतलब 800 और 200 कितना हो गया 1000। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे करो, 8 5 जा 40, कैरी हो गया 4, 8 2 जा 16 और कैरी 4 20, कैरी हो गई 2, 8 1 जा 8 और कैरी 2 10, और यहाँ पे हो गया 53, और देखो ये माइनस है तो माइनस आपका यहाँ पे हो गया। अब बताओ 53 में ये मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली क्या करना है, ये 53 पे कितने जीरो है 1 2 3 जीरो पुट कर लो, तो 53 और 3 जीरो, तो 53,000 -53,000 इसका आंसर हो गया। तो जैसे हमने प्रॉपर्टी यूज की तो देखिए ये ओरल सोल्यूशन हो गया। नहीं तो आप 8 को 53 से मल्टीप्लाई करना जानते हैं, नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी और पेन से करना पड़ेगा, और फिर जो भी आएगा उसको 125 से करोगे तो फिर से पेन और पेपर यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये तो ओरल ही हो गया, आप देख लो
ओरली करो तो 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20, 8 1 जा 8 और 2 10 और फिर 53। अब ये आ गया 30 आपने 53 पे पुट कर दिया, ओरल आंसर आ गया। तो यही होता है प्रॉपर्टी का यूज। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से अभी आपके और भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जैसे हम आपको कौन सा बता दें, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है सी पार्ट है। सी पार्ट में भी आपको अरेंजमेंट ही करना है। ठीक है, सी पार्ट में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाना है। कैसे कैसे करोगे, 25 और 4 को इकट्ठा कर दो तो 25 4 जा 100 हो जाएगा, और 150 और 10 को इकट्ठा कर दो तो 150 हो जाएगा, फिर उसके बाद 0 0 पुट कर दो, आंसर हो गया। इसके बाद डी पार्ट है, तो डी पार्ट कैसे करोगे बताओ। चलो डी पार्ट में आपको बताता, -41 इंटू 53, 102। अब देखो ये है ना, ये आप ऐसे करोगे तो बिना पेन पेपर के तो आप इसे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर प्रॉपर्टी यूज करोगे तो आपका ये आसानी से हो जाएगा। बिना प्रॉपर्टी के अगर हम सॉल्व करेंगे तो बिना पेन पेपर के तो सॉल्व भी नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉपर्टी हमने यहां यूज कर लिया। यस, यू विल राइट इट एज -41 इंटू 100, 2 को हमने लिखा 100 प्लस 2, कैन बी राइट इट, दैट इज 100 प्लस 2 मीन्स 102। सो डियर, आप क्या करना है, नाउ वी यू विल यूज हियर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको इसका वीडियो भेजा हुआ है, तो आप वहां प्रॉपर्टी सभी देख सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, वीडियो भेजेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं और वो किस तरह से यूज की जाती हैं। तो यहाँ पे देखो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, 41 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, so -41 into 100 and then this sign plus, अब इस 41 को यहां 2 से भी करेंगे तो -41 into 2, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 41 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। तो अब आप देखो 0 0 आ गए ना, तो आप सिंपली लिखोगे 41 और 2 0। अब 41 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो ये भी ओरली हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, और ये माइनस है और प्लस है, प्लस और माइनस माइनस। अब आप देखो बोथ साइन नेगेटिव, दोनों साइन नेगेटिव है तो क्या करना है, ऐड कर देना है, लेकिन साइन वही लिखना है, साइन माइनस ही रहेगा। 0 एंड 2 2, 0 एंड 8 8, and nothing, 4 1 same to same, so this is the answer। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज किया तो ओरली हो गया। ओके, इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे ही आपका पार्ट नंबर एफ भी है, और इसी तरह से आपका पार्ट नंबर जी भी है। जी पार्ट में क्या कर लोगे, 29 है तो 29 को लिखोगे 30 - 1, है ना। और इसके बाद में पार्ट नंबर एच भी है, तो आप इसी तरह से ये पार्ट कर लोगे, है ना। ई पार्ट आपको एक और बता देते हैं, 5 इंटू -35 एंड देन प्लस -625 एंड इंटू 65। ओके, हाउ कैन यू सॉल्व दिस बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे,
625 यहां भी है, 625 यहां भी है। 625 को हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने का मतलब बाहर लिख लेंगे, इनटू, आप देखो यहां पे बचेगा क्या, -35, तो वो हमने लिख लिया। और यहां पे देखो 625 तो ये आ गया। अब क्या बचेगा, माइनस, पहले तो ये प्लस साइन लगा लू, ये प्लस साइन। अब यहां पे ये 625 बाहर आ गया तो बचेगा क्या, माइनस, और क्या बचेगा 65, तो 65 भी लिख लिया। नाउ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखो 625 तो अभी भी सेम टू सेम, एंड हेयर -35 and plus and minus -65. So you will see both sign is negative. तो क्या करना, दोनों नंबर को ऐड कर देना है। तो 625 इंटू 5 एंड 5 कितना हुआ, 0। 3 और 6 कितना हुआ, 9। 5 और 5 कितना हुआ, 10 ना, कैरी 1। और 6 एंड 3 कितना हुआ, 9। 9 और 1 तो 10 हो गया। और माइनस तो माइनस ही रहेगा। अब देखो डबल जीरो आ गया, ये डबल जीरो आप यहां पुट कर दो, 625 and 00, and this is the negative sign, so you will mark negative sign. This is your answer. तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सा यूज हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूटेड था, 625 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट था, तो आप यहाँ पे लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर को हम इधर भी लिख लेते हैं, कॉमन भी ले लेते हैं, तो वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे।